Yes, very good morning to all of you. Now we are going to carry on a marathon revision of microeconomics where I will be covering each and every topic and I will be emphasizing on the main points which are being asked in examination. So let us go through this journey in accordance to the paper, in accordance to the syllabus. The chronological order we will follow is as per your book. So the very first chapter that is there in your books is Introduction to Economics. Now in Introduction to Economics, what is desired out of us? Let us see. What we say is economics is a subject which has evolved over a period of time. Economia was a Greek word which used to tell how the household expenses are to be managed. That means the first application of economics was on managing household expenses, and then after seeing the benefits, the subject evolved and we started to use the information and the knowledge of economics in business world as well. Now the popular name, world over popular name is economics. So various economists have evolved. Adam Smith, Alfred Marshall, Pigou, they have evolved various concepts in microeconomics. The basic problem of economics is that we have unlimited wants and the resources are very scarce. Now how to meet these wants through scarce resources? This is economics. Here we need to understand that all our wants cannot be satisfied. Hence, we need to prioritize our wants and we should first allocate our resources to those wants which are of high priority, and we should leave those wants unmet which are having very less priority. So making two ends meet is one of the objectives and one of the aims of economics. Now there is a word called business economics. How economics and business economics is different? Well, when we talk about economics, we say there are two aspects to economics. One is microeconomics, second is macroeconomics. When we talk about microeconomics, we say the economics concept which deals with individuals, which deals with firms, this is microeconomics. And when we say the concepts of economics which deals with nation, which deals with state, they are called macroeconomics concepts. Well, when we talk about microeconomics, we discuss about three aspects. One is consumer, second is producer, and third where they interact, that is market. When we talk about macroeconomics, we talk about things that we consider from nation's point of view. For example, national income, money and banking, international finance. These are the aspects, balance of payment. These are the aspects that we cover in macroeconomics. So economics comprises of micro and macro, and the new word that has emerged, business economics, it deals with what? Obviously it encompasses everything what is there in economics, plus there is one more aspect in business economics, that how to put economic knowledge to use for decision making. So use of economics for decision making is called business economics. Day in, day out, we are taking lot many business decisions, what to produce, how much to produce, at what rate to sell. All these needs decision making. And when we say we apply, practical application of economics is done to take this decision, this is called business economics. Now business economics in fact becomes more wider than economics, because here
all aspects of economics are covered, plus decision making is to be done, and to take decisions we don't shy from other subjects. That means certain tools and techniques which are used in other subjects, for example in financial management we use ratio analysis, we use capital budgeting, we use over here also in business economics to take decisions, we use statistical techniques to take business decisions, we use mathematical techniques to take business decisions. So business economics not only encompasses all what is there in economics, but it also covers the other disciplines which help a producer to take correct, timely, accurate decision. So this is called business economics. Well, this is what is given in the first chapter. Then in second chapter there are discussion about basic problems of economics. What are various basic problems of economics? Now when we talk about basic economic problems, what are they? Perhaps you know what are basic economic problems. Basic economic problems are what to produce, how to produce, for whom to produce, how to keep reserves for future use. There are four basic problems. You see, you have to demarcate. Initial use of economics is to meet the two ends meet. Human wants are endless, the resources are limited. How to bring synchronization between that? Here we apply economics. And now, how to handle basic problems? I repeat, what are my basic problems? What to produce, how to produce, for whom to produce, and how to keep reserves for my future generations. I do not want to use everything now. I cannot use all petrol now. What will my future generations do? I have to be wise enough to use now and to leave something for my future consumption as well. These are my basic economic problems. And we also discuss in this chapter how these problems are handled. Well, to handle these basic problems, we use economic systems, or we may also use price mechanism systems, or broadly speaking we use economic systems. And when we talk about economic systems, we know broadly we can classify our economic systems into three categories: capitalist system, socialist system, and third is mixed economy. Through these three different economic systems, we try to solve our basic problems. Let us look how. Supposingly, we are using capitalist model. Now, in capitalist model, there is laissez-faire policy. Government does not intervene. Private entrepreneurs decide what to produce, which technique to use, what they will produce, the things that are demanded in market, which command some price, where there is a price mechanism for which they can get consideration, they will produce only those goods. And to select which technique is to be used, they can opt either labor intensive or capital intensive. They will use a technique which is cheaper, because cheaper technique will give them more profits. For whom to produce? Only for those they will produce, those who can pay them the desired price. So capitalists solve their problems like this, but there are defects in this problem. This is good for developed countries but not good for underdeveloped and developing countries, because in developing and underdeveloped countries there will be a population, those who cannot pay, but they will need services, free hospitals, free education. Such goods are not available in capitalist economy. So there is a problem of missing markets, missing goods in capitalist economy, because they are just doing it for profits. Those who cannot afford, they don't produce for them. And there are certain social goods, for example law, justice, policing. You don't pay for them, but you need them. Such goods may also be missing in capitalist economy. So capitalist economy does solve my problem, but maybe it is not good for underdeveloped countries or developing countries or for social goods. Then there is second way of solving my problems. Second way is I can go in for socialist economic system, which
India initially followed also. Now also we are following. In our preamble it is written, we the Indians hereby resolve to constitute India into socialist, republic, democratic country. So we are socialist as per our constitution. In socialism, major decisions are to be taken by the government. However, in India, we have mixed economy. There is a parallels. The coexistence is there. Government enterprises are also there. Private enterprises are also there. But in pure socialism, every decision is taken by government. What to produce according to national requirements. For whom to produce according to national requirements to maximize social benefit, to maximize social welfare, they will produce. At what rate? Rates will also be decided by the government. In China, in USSR, these systems were followed. In USSR, the system has already flopped, but in China, still we are continuing with this system. In India, initially when we got independence, this system was followed because private entrepreneurs had no money. But after economic reforms of 1991, we are seeing there is a tilt. We are moving towards capitalism because we are hanging in between. So we say Indian economy is a mixed economy. In mixed economy, there is a coexistence. Social goods, socially desirable goods which are needed by mass population, they are produced by government. Private goods which command price, which can be purchased by people, those goods are produced by private people. So there are three economic systems through which we can solve our basic economic problems. Well, my first chapter contains these two units, and on the basis of the discussion, main points I have just brought in to picture. There will be MCQs. There will be a couple of MCQs from these first two chapters. Anyhow, thereafter, what we do? We now seriously take up our journey of microeconomics. Now, we say when we have to discuss microeconomics, the three pillars are: one is consumers, second is producers, and third is the market. If we just build on these three pillars, if we just expand our knowledge of these three pillars, we will be able to understand all aspects of microeconomics. Well, let me open it up. When we talk about consumers, we need to have knowledge about consumers. So the topics that we need to understand is demand analysis, and second we need to know is consumer behavior. I will open up with these topics. Let me draw the chart and then I'll be opening with these topics. So by demand analysis, what do you mean? How much quantity will be demanded, at what price it will be demanded. Quantity of goods and services obviously are to be demanded by consumers. So in demand analysis, we will be learning about meaning and nature of demand. We need to learn about elasticity of demand. We need to know about demand forecasting. These are the three aspects of demand analysis. Now, when we talk about elasticity of demand, that means we need to know about price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Then the second thing about consumer that we need to know is consumer behavior. Let's concentrate on consumers first. In consumer behavior, I need to understand how consumer behave when their income changes, when the price of goods changes, when taste preference habits changes, when need changes, when place changes, when time changes. Through three tools to understand consumer behavior is
utility analysis, consumer surplus, and you can say indifference curve analysis. Well, about consumers, we need to understand these concepts: meaning and nature of demand, elasticity of demand, demand forecasting. To understand consumer behavior, we need to understand what is utility analysis, consumer surplus concept, indifference curve analysis concept. I hope you are understanding. Anything that you have to ask, or should I expand on this now? Is it fine with you now? Okay, I am continuing. Anything you have to ask, you can ask me in between. Raise a chat and I will be able to respond to that. Okay. So the first thing that is there is law of demand. Second thing that we'll be doing is elasticity of demand. Just listen to me carefully and I'll be able to run through the whole things. Demand is a relationship between quantity demanded and price. The relationship is inverse relationship. Demand is done for goods and services. This is done by consumer. Two aspects to demand are: a, willingness of consumer to buy different goods at different prices at a given time, and it should also be backed by their ability to pay for it. If there is a consumer who wants everything but cannot pay for it, law of demand for such people cannot be propounded. A, you should be willing to buy, and B, there should be ability to buy also. और डिमांड कौन कर रहा है बेटा? कंज्यूमर. किस चीज़ की कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज की. ए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, और बी, उसमें एबिलिटी टू परचेज भी होनी चाहिए. डिमांड की डेफिनेशंस भी यही हैं कि डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर गिवन टाइम के ऊपर आप कितनी क्वांटिटी डिमांडेड खरीदेंगे, दैट इज डिमांड. डिमांड के कई सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे प्राइस. अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट के प्राइजेस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस से भी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर असर आता है. इनकम से भी क्वांटिटी डिमांडेड पे असर आता है. इनकम कम ज़्यादा होने से डिमांड क्या हो जाती है? कम ज़्यादा हो सकती है. देखिए, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज में. जब प्राइस आएगा तो वर्ड हम सामने यूज़ क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड. और जब प्राइस के अलावा कोई अदर फैक्टर्स आएंगे, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, तब हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ किसके साथ? प्राइस के साथ. अदर फैक्टर्स के साथ क्या यूज़ करेंगे? वर्ड केवल और केवल डिमांड. सो इनकम बढ़े तो कई चीज़ों की डिमांड बढ़ती है. टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स फेवरेबल हो तब भी डिमांड बढ़ती है. अदर फैक्टर्स में नंबर ऑफ यूजर्स, कंज्यूमर ग्रुप का साइज बड़ा है, यूजर्स ज़्यादा है, तब भी डिमांड बढ़ती है बेटा. प्राइस का डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स होता है. प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. लेवल ऑफ इनकम के साथ डिमांड का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है बेटा. हाँ, इन्फीरियर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा. इन्फीरियर गुड्स हम मजबूरी में कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे ही हमारी आमदन बढ़ेगी हम इन्फीरियर गुड्स को त्याग कर सुपीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे. साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब यंग पीपल अगर आपकी पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा है. अगर ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी बेटा? कम होगी. लॉ ऑफ डिमांड भी बिल्कुल सिंपल होता है. जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. एल्फ्रेड मार्शल ने भी ऐसा ही कहा है. So it means demand is a function of price, price of related goods, income, taste preference habits and expectations of consumer. डिमांड का शेड्यूल हम इंडिविजुअल के लिए भी बना सकते हैं और मार्केट के लिए भी. इंडिविजुअल का मतलब
जब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को गिवन टाइम पर डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर एक ही कंज्यूमर खरीद रहा है, तो जो उसका ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में बेटा क्या होगा, हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। सामान एक, टाइम एक, प्रोडक्ट एक, मगर कंज्यूमर एक से ज़्यादा, डिमांड ऑफ ए, डिमांड फॉर बी, इन दोनों को जोड़ लगा लेंगे तो हम क्या कर देंगे, मार्केट डिमांड निकाल लेंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम। यानी चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो चाहे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो, डिमांड कर्व ने एक ही जैसा बनना है। और वो कैसे बनना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का भी जो शेप है इट इज़ द सेम। कोई पूछता है डिमांड कर्व स्लोप क्यों डाउनवर्ड करता है, बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होता है हमें लगता है हमारी इनकम बढ़ गई, मॉनेटरी इनकम नहीं, रिलेटिव इनकम बढ़ गई, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो हम इंजॉय करते हैं और हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं। जब कोई सामान सस्ता होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट महंगा ही रह जाता है, लोग उसको छोड़कर हमारे वाले प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और कई बारी क्या होता है, जो सामान सिर्फ सिंगल यूज़ में हो रहा होता है, जैसे मिल्क सिर्फ मिल्क में यूज़ हो रहा था, जैसे ही उसकी प्राइस घटा, मिल्क के मल्टीपल यूजेस हैं, हमने उसको सारे यूजेस में डाला तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। पहले हो सकता है मिल्क सिर्फ बच्चों को दे दिया जा रहा था, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप छोटा था, जैसे ही प्राइस कम हुआ हमने मिल्क की अवेलेबिलिटी सब लोग को करा दी। डिमांड की एक्सेप्शंस क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड जॉन से वेबलन गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता, अगर कंज्यूमर इग्नोरेंट है तब ये लागू नहीं होगा, गिफिन गुड्स के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा, और अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस घटने या बढ़ने वाला है तब भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। चेंजेस इन डिमांड क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि प्राइस क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, अदर फैक्टर्स सेम। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है बेटा, प्राइस सेम रहता है मगर अदर फैक्टर्स फेवरेबली चेंज करते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, दैट इज इंक्रीज। प्राइस अगर सेम रहे और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए दैट इज कॉल्ड डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में मूवमेंट इज अलोंग द सेम डिमांड कर्व। So this is there. Next thing to discuss is elasticity of demand. When we talk about elasticity of demand beta, it means proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप इसको यूं भी कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप चेंज हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बिना प्राइस के चेंज हुई क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जा रही है। और अगर सपोज करो प्राइस के चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, कोई इलास्टिसिटी नहीं है, कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, न्यूमरेटर जीरो तो आंसर भी जीरो, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कब हो जाएगी, जब प्राइस के चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड में नो चेंज। अगर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। और अगर थोड़े प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रही है तो ये हाईली इलास्टिक, और अगर ज़्यादा प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हो रही है तो ये हाईली इन इलास्टिक। इस फॉर्मूले में पहले हम प्लस माइनस का साइन डालते हैं, रीज़न है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस जो उनसे हैं ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो हम इस इन्वर्स रिलेशन की वजह से अपने आप से यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, बट हम यहाँ पे प्लस माइनस का क्या बेटा डालते हैं, साइन। पर्पस क्या है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिग्रीज मैंने आपको बता दी हैं बेटा। इसको निकालने का एक तरीका भी है, और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे हाईली इलास्टिक, यहाँ पे हाईली इनइलास्टिक।
at different points of demand curve, elasticity of demand is different. So as there is, you can say, movement downwards, price elasticity of demand falls. जैसे जैसे you can say it is upward movement, price elasticity of demand increases. Let me make it fairly for you. इसमें opposite आया. Now this is demand curve, DD dash, and this is the midpoint. यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी. यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0. यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1. यहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इट इज़ लेस देन 1. ओके, दिस इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये मैंने आगे दिखाया भी हुआ डायग्राम में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें सिर्फ हम न्यूमरेटर तो वही सेम रहता है इसमें फॉर्मूले में, मगर डिनोमिनेटर को क्या कर देता है बेटा, चेंज. नॉर्मल न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्या रहता है, इतना रहता है, मगर आर्क इलास्टिसिटी में दोनों ही जगह डिनोमिनेटर Q1 प्लस Q2 हो जाता है और P1 प्लस P2 हो जाता है. सो दिस इज द चेंज फॉर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रिमेंबर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1. और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ आर्क में, तो बस ये Q1 की जगह Q1 प्लस Q2 और P1 की जगह P1 प्लस P2. मगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, नॉर्मल. आर्क इलास्टिसिटी मेथड आपकी नॉलेज के लिए, आपको यूज़ नहीं करना है प्रैक्टिकली. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है और उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. कोई चीज़ सस्ती हो रही है उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. पहले में ग्रेटर देन 1, दूसरे में इक्वल टू 1. और अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है और उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर पहले से घट रहा है तो इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सिर्फ हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक बताता है, इसलिए लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेथड है. मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेथड कौन सा होएगा बेटा, न्यूमेरिकल मेथड इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेथड. अगर सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी. अगर किसी चीज़ की हमारे बजट में पोजीशन बड़ी है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी. अगर कोई कमोडिटी ज़्यादा नीड सेटिस्फाई कर सकती है तो उसकी भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी. अगर नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. और अगर कंज्यूमर हैबिट्स बेटा हमारी उसके साथ बनी हुई हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो प्राइस महंगा भी होगा तब भी हम उसको खरीदेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, कम होएगी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है बेटा. अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम. इनकम के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव. इसका मतलब हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं. नेचर ऑफ गुड्स पता चलती है हमारे को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. अगर इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, हम इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं. अगर इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जहाँ थी वहीं रही, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम बेयर नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं. आंसर अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव है तो इन्फीरियर गुड्स, और अगर बेटा ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब बेयर नेसेसिटीज़. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है इसके अंदर बेटा, क्या आता है हमारे पास, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है. इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे को एक्स और वाई का रिलेशनशिप पता चलता है, हाउ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर्मूला क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई.
अगर y का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कितनी x की क्वांटिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला आपके सामने है और इसको हम इंटरप्रेट भी कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए x का प्राइस बढ़ा और उसकी वजह से x की जो सेल है वो क्या हो गई, कम हो गई, और x की सेल कम होने से सपोज करो y की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जॉइंट डिमांड गुड्स की। और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इधर हमने प्राइस को बढ़ाया, x की डिमांड कम हुई और उधर y की डिमांड बढ़ गई, तो x से डिमांड शिफ्ट होकर y में चली गई, तो ऊपर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर पॉजिटिव है तो हम x और y में रिलेशनशिप बता रहे हैं किसका, सब्स्टिट्यूट्स का। और अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है कि प्राइस तो y का बढ़ा या घटा मगर x की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर में ज़ीरो, ओवरऑल आंसर ज़ीरो, तो इसका मतलब हम अनरिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिग्रीज जौन सी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हमें अलग अलग चीज़ें बताती हैं। हमें इनकम इलास्टिसिटी क्या बताती है कि नेचर ऑफ गुड्स क्या है। हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि एक्स और वाई में रिलेशनशिप क्या है। हमारे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है, कंज्यूमर का बिहेवियर टुवर्ड्स डिफरेंट गुड्स क्या है। सो दिस इज लिटिल डिस्कशन यू कैन से अबाउट our demand, the aspects of you can say nature of demand and elasticity of demand. We briefly discussed the concept of price, income and cross elasticity of demand. Yes please, do you have to ask anything? Anything that you have to ask? So I am continuing as there is no query coming forward. The next concept that is there in demand is demand forecasting. Forecasting means pre-telling in advance what is going to be my demand. So demand forecasting is a useful tool which management uses to pre-know in future time what will be the quantity demanded, so that I can orient my resources in likewise manner and produce according to the needs that will be arising in future. मान लो कि मैं ये फोरकास्ट करता हूँ आने वाले समय में 100 यूनिट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, और अगर मैंने फोरकास्ट नहीं किया हुआ था, मैं सिर्फ 40 यूनिट बनाता हूँ, तो मैं 60 यूनिट्स की पोटेंशियल सेल्स खो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे नुकसान हो, तो मैं पहले से ही प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। और एट द सेम टाइम अगर मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि 100 यूनिट्स की डिमांड होने वाली है और मैंने बिना प्रिडिक्ट किए हुए 1000 यूनिट्स बना लिए थे, तो 900 यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं। ना मैं वेस्टेज चाहता हूँ, ना मैं अपनी सेल्स का लॉस चाहता हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए द टूल दैट वी कैन यूज इज डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं बेटा। या तो हम मार्केट में जाके सर्वे कर सकते हैं, बायर की चॉइस ले सकते हैं, और उसके थ्रू हम ये असेस कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी क्या डिमांड होने वाली है। या फिर हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनका ओपिनियन ले सकते हैं, उसको कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी कहते हैं। या फिर हम क्या ले सकते हैं, बायोमेट्रिक मेथड। हम बायोमेट्रिक अप्रोच ले सकते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लीडिंग, लैगिंग इंडिकेटर्स या कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये ट्रेंड्स निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे कि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या बढ़ी, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या पड़ा। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, हम मार्केट्स में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए। या फिर कोई एक सुपर एक्सपर्ट है उसी से पूछ लिया जाए। या फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इनका यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, जिससे कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर माय डिमांड फोरकास्ट। Next aspect of consumer behavior is how to study consumer behavior. Utility analysis, consumer surplus and indifference curve analysis are my tools to study consumer behavior.
Now, how do I study about this? How do I go about it? When I say there are two ways of studying consumer behavior, one is cardinal approach and second is ordinal approach. Cardinal approach is number system, ordinal approach is level system. It is easier to analyze consumer behavior through ordinal approach because to get preferences in levels, I like this more, I like this less, is easier than asking question by how many points you like this, 10 points you will give, 5 points you will give. It is subjective method. So utility approach which is based upon number system is subjective, whereas ordinal approach which is based upon levels is objective. Ordinal approach propounded by Hicks and Allen, and he has given indifference curve analysis. Cardinal utility approach is given by Alfred Marshall, and he has used number systems, and he has given two concepts, utility concept and the concept of consumer surplus. Now by utility we mean the power of a commodity to satisfy human wants. Utility is subjective, it varies from person to person, it is in relation to time, place and person. Time changes, utility changes. In winters we require woolen clothes, in summers we do not. Time changes, utility changes, place changes. In hills you require more woolens, in plains you require less woolens. So utility is relative. Utility is not essential. Even immoral goods, to a drunkard, alcohol is giving utility. So utility is not about morals, it is ethically neutral. The utility that you get from the first unit consumed is called initial utility. The total utility you get from consumption of all units is called total utility. The change in total utility due to change in one unit of consumption is called marginal utility. Marginal utility can be positive, it can be zero, it can be negative. The concept of law of diminishing marginal utility is propounded by Alfred Marshall. According to him, utility is cardinally measurable. There is marginal utility of money that should remain constant. These are the assumption he has taken, and he has also stated that utility is independently measurable. The two products will not have joint utility. In his law he says, this is important law, Alfred Marshall says, as we consume next unit in a standard size without delay, the utility that will be derived from the second unit consumed will be less than the utility we derived from the first unit consumed. With every increase in stock, additional utility will fall, that is marginal utility will diminish. You can see for first unit the total utility is 30, marginal utility is also 30. Second, marginal utility is not as high as the first unit, it is 20. So total utility is 50. So marginal utility keeps changing, it keeps decreasing as number of units increases. So this is the graph for, you can say, marginal utility. Here marginal utility is positive. Here it is marginal utility is 0. Here marginal utility is negative. And what is total utility? It initially increases at decreasing rate. When it is 0, total utility is maximum, and when it becomes negative, total utility starts to fall. This is law of diminishing marginal utility. Then Alfred Marshall has given the concept of consumer surplus. Then he has given the concept of consumer surplus. Now what is consumer surplus? देखिए बेटा, एक चीज़ की कीमत है 10 रुपये, मगर वो चीज़ हमें आराम से नहीं मिल रही, तो हम उसे ब्लैक में भी ख़रीदने को तैयार हैं, प्रीमियम पे भी ख़रीदने को तैयार हैं, मैं उसका 15 रुपये भाव देने को तैयार हूँ। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हूँ, 5 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और जैसे ही इस सामान की उपलब्धि जौन सी है जो बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो मैं एक्स्ट्रा पैसा जो देना चाहूँगा दैट विल बी ऑन अ लेसर साइड. दैट मीन्स व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेस. और जब किसी चीज़ की सप्लाई अबंडेंट में हो जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, देन कंज्यूमर सरप्लस विल बिकम ज़ीरो. कंज्यूमर सरप्लस में यही बात है, इनिशियली
जो कंज्यूमर सरप्लस है वो हाई है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा। जब अवेलेबिलिटी अबंडेंट हो जाएगी कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस कभी नेगेटिव नहीं होता है। जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं उनकी हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनाइट होता है। लाइफ सेविंग है, मैं उसका मूल भाव नहीं करूँगा, तो मैं जिस भाव मिलेगा उस भाव खरीदूंगा, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स इज इन्फिनिटी। Then we have a concept of indifference curve analysis. Now in case of indifference curve analysis, what happens? Indifference नाम से हमें क्लियर हो रहा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऐसा कर्व जिसके ऊपर उस कर्व के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऊपर कंजम्पशन करने से कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है, इसलिए वो किसी भी पॉइंट को ऑप्ट कर सकता है। इनडिफरेंट है, ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं? इनडिफरेंस कर्व। यानी यहाँ पर हम ये मानते हैं कि कंजम्पशन करने के लिए दो कमोडिटीज़ हैं और वो दो कमोडिटीज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंज्यूम करी जा सकती हैं। अगर x की क्वांटिटी बढ़ेगी तो y की घटेगी, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो जो मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है वे क्या मिलती है? सेम। On different combinations the satisfaction that I get is the same. Let's see. This is commodity Y, this is commodity X, and these are the combinations A, B, C are my different combinations. On different combinations, what I get? Same satisfaction. So indifference curve is a downward sloping curve. It has a negative slope. ये negative slope है, and it is convex to origin. आप शेप देख रहे हैं, it is not concave, it is convex to origin. Marginal rate of substitutions diminishes. जब शुरू में मेरे पास y ज़्यादा है और x कम है तो एक और यूनिट x पाने के लिए शुरू में मैं y के ज़्यादा यूनिट्स त्यागने को तैयार हूँ, मगर अगली बारी y के यूनिट्स छोड़ूंगा तो सही, मगर उतने ज़्यादा नहीं जितनी पिछली बारी छोड़े थे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे किसका? प्राइस लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। प्राइस लाइन क्या है कि मेरे पास एक लिमिटेड पैसे हैं और मुझे दो सामान खरीदने हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। जिन कॉम्बिनेशंस में खरीद कर मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अ प्राइस लाइन। जब उन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए जो लाइन बने, दैट इज कॉल्ड प्राइस लाइन। आप सारा ही पैसा y में लगा दो, सारा ही पैसा x में लगा लो या बीच के कॉम्बिनेशंस में लगा लो, मगर आपके पूरे पैसे खर्च होने चाहिए। अगर इससे कम खर्च होंगे तो अंडर स्पेंडिंग, इससे ज़्यादा खर्च होंगे तो ओवर स्पेंडिंग। इसके ऊपर कोई पॉइंट आएगा तो हम कहेंगे टू द एक्सटेंट अवेलेबल हमने फुल स्पेंडिंग कर दी है। अगर मेरे को अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चाहिए, बेटा ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मुझे ना देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे नहीं चलना, मुझे तो एक कॉम्बिनेशन बताओ जो कंज्यूमर क्या करने वाला है? ऑप्ट करने वाला है, जो कंज्यूमर को क्या आने वाला है? पसंद आने वाला है। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? हम ये कहते हैं कि ये हमारी प्राइस लाइन है और जिस पॉइंट के ऊपर इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टेंजेंट होगा वही होगा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ना इसके नीचे ना इसके ऊपर, ना अंडर स्पेंडिंग ना ओवर स्पेंडिंग। जितने अवेलेबल पैसे खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहाँ पे मिले कंज्यूमर को, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो किसके बराबर हो गया? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है?
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स टू वाई, इसके बराबर हो गया स्लोप ऑफ प्राइस लाइन दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। एम आर एस एक्स वाई को आप एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी कह सकते हैं। ये इक्वेशन से आपको कई एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। Well, this is little discussion about indifference curve analysis. ये मैंने आपके साथ लास्ट में सबसे मेन इक्वेशन है उसको क्या किया, हैंडल किया बेटा। हाँ जी बेटा, सो दिस इज लिटिल डिस्कशन अबाउट द aspects that we needed to cover in microeconomics related to whom, related to consumers. You want to know anything more about consumer, you need to know any concept about consumers in more detail, you may ask me now. You can ask me now. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर मेरे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनेंगे। देख बेटा, तू ना क्या कर सकती है, एक्स और वाई कंज्यूम कर सकती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए है तेरा, तूने 10 यूनिट एक्स से कंज्यूम करे हुए हैं, 1 यूनिट वाई का किया हुआ है, दिस इज कॉम्बिनेशन ए। अब कॉम्बिनेशन बी कैसे बनेगा तेरा, तेरे पास अबंडेंस में क्या है एक्स, शॉर्टेज में क्या है वाई, तो वाई का तो एक और यूनिट बढ़ाना चाह रही है, वाई के कितना करना चाह रही है, कंज्यूम 2 यूनिट्स। तो अब एक्स के ना शुरू में कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट्स छोड़ने को भी तैयार है, से 4 यूनिट छोड़ देता है, तो कॉम्बिनेशन 2 क्या बन गया, 6 2। अब कॉम्बिनेशन सी पे आओ बेटा, अभी वाई का आप एक और यूनिट कंज्यूम करना चाह रहे हो, तो ये कितने हो गए 3। अब आप एक्स की यूनिट छोड़ेंगे तो सही, मगर उतने ज़्यादा नहीं जितनी प्रीवियस बारी छोड़े थे, से अब आप 2 छोड़े आपने यूनिट्स, तो ये क्या बन गया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 4 3, यानी कि शुरू में आपने 4 छोड़े फिर 2 छोड़े, यानी एक यूनिट पाने के लिए पहले 4 यूनिट छोड़ रहे थे फिर 2 यूनिट्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक को पाने के लिए दूसरे की कितने यूनिट छोड़े ये छोड़ने वाले यूनिट्स क्या हो रहे हैं, कम, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या कहलाया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनाए, इंडिफरेंस कर्व क्या बनाए, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, पीठ दिखा रहा है ना ओरिजिन को, ये क्या बना है कॉन्वेक्स, क्यों, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात बेटा, यस, एनीथिंग एल्स, कुछ और बेटा कंज्यूमर से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, सर इंडिफरेंस कर्व एक और बार बता दो। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो हर उस कॉम्बिनेशन को जोड़कर बना है जिन कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करके कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये है, यहाँ पे y ज़्यादा है और x कम है, अगला कॉम्बिनेशन हमने y को घटाया और x को बढ़ाया, अगला कॉम्बिनेशन और x को बढ़ाया और y को घटाया, तो इन सबको जोड़ने के बाद कॉम्बिनेशन ए बी सी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ए इज इक्वल टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट बी इज इक्वल टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट सी। अगर ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है तो हम कहेंगे एरिया अंडर द ग्राफ ए के ये है, बी के ये है, दोनों का एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ए इज इक्वल टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सी। व्हेन ऑल दीज पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर द कर्व दैट वी गेट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। संधि विच्छेद कीजिए, इनडिफरेंट, कंज्यूमर इनडिफरेंट है किसी भी कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करने में, क्यों इनडिफरेंट है, क्योंकि उसको हर कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या हो रही है, बराबर। यस प्लीज, हाँ जी बेटा जी, ये बात समझ में आई आपको, हाँ जी सर। हाँ जी, कुछ भी और पूछना है बेटा कंज्यूमर से रिलेटेड, मैं नहीं तो फिर प्रोड्यूसर्स पे मूव कर रहा हूँ। सर इलास्टिसिटी का पूछना था थोड़ा। हाँ बोलो बेटा। सर गोल्ड की इलास्टिक सप्लाई होती है। हाँ जी हाँ जी।
बिल्कुल होती है, क्योंकि इन इलास्टिक इन सेंस की माइंस में से हम कितना गोल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं इसकी लिमिट है। ओके सर। ठीक है, मतलब हम अनलिमिटेड गोल्ड नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। गोल्ड इज नॉट मैन मेड रिसोर्स, गोल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ मदर नेचर। इट यू गेट इट फ्रॉम कॉलोरीज, यू गेट इट फ्रॉम माइंस थ्रू एक्सप्लोरेशन, एंड ऑब्वियसली यू कैन एक्सट्रैक्ट अ लिमिटेड गोल्ड ओनली। ओके सर हाँ जी अरे इंडिफरेंस का कंकेव तो ओरिजिन हो सकता है। बेटा, नहीं हो सकता ना, उसमें क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी जौन सी इंडिफरेंस कर्व की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड डिमिनिश। एक चीज़ को पाने के लिए शुरू में ज़्यादा यूनिट छोड़ना और उसके बाद उससे कम यूनिट छोड़ना, इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर वो कनकेव हुआ तो ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं होगी, इसलिए वो कभी भी कनकेव नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा जी, और कुछ बेटा? चलें अब हम प्रोड्यूसर्स के बारे में डिस्कस करें कुछ। Shall we discuss about producers? यस सर। चलिए ठीक है बेटा। Now when we discuss about producers, what we want to say? We say producers से related concepts कौन से हैं बेटा? एक तो कॉन्सेप्ट है क्या, सप्लाई का। एक कॉन्सेप्ट है किसका, प्रोडक्शन एनालिसिस का। और एक कॉन्सेप्ट है आपका किसका बेटा, कॉस्ट एनालिसिस का। These are my concepts which I will like to discuss with producers. सबसे पहले नंबर पे ले लेते हैं किसको बेटा, सप्लाई को। सप्लाई इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिमांड। यहाँ पे मुझे दो ही बातें डिस्कस करनी है। एक तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई क्या होती है, और दूसरा मेरे को क्या डिस्कस करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा सप्लाई के। सो लेट अस टेक देम अप and one by one I will move. तो सप्लाई क्या है, सप्लाई किसकी होनी है बेटा, सप्लाई होनी है गुड्स की या फिर सर्विसेज की। सप्लाई करनी है किसने, प्रोड्यूसर ने। सप्लाई होनी क्या है, फ्री में नहीं होनी, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइस, कि कंज्यूमर प्राइस देगा तो प्रोड्यूसर सामान देगा। और सप्लाई के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो प्रोड्यूसर विलिंग होना चाहिए डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर सामान देने के लिए, और दूसरा उसकी कैपेसिटी, उसकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं तो सामान दे दूंगा बट मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। मेरी कैपेसिटी है मगर मैं सामान देना नहीं चाहता, मार्केट पे विलिंगनेस नहीं है, तो वो भी सप्लाई नहीं है। सप्लाई के लिए ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर विलिंग भी हो और उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस भी हो। क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स या सर्विसेज। सप्लाई जॉन सा है ना बेटा, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैंने ना ऑफर टू सेल किया कितना सामान, 100 यूनिट्स, सेल हुआ बेटा कितना, 80 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक बच गया कितना, 20 यूनिट्स। तो मेरी सप्लाई कितनी है, 100, 80 या 20? आंसर इज 100। जितना मैंने ऑफर किया था ना बेटा सामान बेचने के लिए, दैट इज सप्लाई। उसमें से एक्चुअल में बिका कितना, दैट इज सेल्स। जो नहीं बिका दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। सो व्हाट यू ऑफर टू सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई एमसीक्यूज आते हैं। सप्लाई की डेफिनेशन भी सिंपल है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा ज़्यादा सामान सप्लाई होगा, रिलेटेड गुड्स सस्ते होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, रिलेटेड गुड्स महंगे होंगे तो हम इसको छोड़ के रिलेटेड गुड्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ती है, मार्जिन ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ेगी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हाई एंड है तो सप्लाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगी।
अदर फैक्टर्स में क्या है कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, अगर अच्छी है तो सप्लाई बढ़ेगी. सो दीज आर माय डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. सप्लाई का प्राइस के साथ बेटा रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्ट. यानी प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. दिस इज माय लॉ ऑफ सप्लाई. So supply, quantity supplied is a function of price of commodity, directly relation है. cost of production कम, profit margin ज़्यादा, supply ज़्यादा. technology of production high end, quantity supplied ज़्यादा. सप्लाई का शेड्यूल भी हम इंडिविजुअल और मार्केट के लिए बना सकते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है. और अगर मेरे को मार्केट का सप्लाई शेड्यूल बनाना है तो हम प्रोड्यूसर एक से ज़्यादा ले लेंगे, सामान सेम रखेंगे, प्राइजेस सेम रखेंगे. तो हर प्रोड्यूसर जौन सा है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. दोनों की क्वांटिटी सप्लाइड को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट की सप्लाई शेड्यूल बन जाएगी. और इसमें भी यही रिलेशनशिप आ रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बढ़ रही है. इसका मतलब चाहे वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो, चाहे वो आपका मार्केट सप्लाई कर्व हो, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग. It is positively sloped. It is moving upward from left to right. यही सेम शेप किसमें आएगी, मार्केट सप्लाई में भी आएगी. ये भी क्या है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. किन चीज़ों के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, दिस इज इंपॉर्टेंट. लेबर के ऊपर नहीं होता. जब लेबर को वेजेस कम मिलती हैं तो वो ज़्यादा काम करती हैं. अगर बहुत ज़्यादा लेबर की वेजेस बढ़ा दोगी तो फिर वो आलस करेंगी, फिर वो काम नहीं करेंगे. तो लेबर के ऊपर सप्लाई का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्योंकि वो मदर नेचर देती है, हम अचानक से टमाटर महंगे हो गए तो कल एकदम से उपज बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता. उसके समय लगता है उसके अंदर. आर्टिस्टिक गुड्स की भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑक्शन के गुड्स की भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती. और कई बार लोग जो है सामान होल्ड कर लेते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि अगली बारी रेट और बढ़ जाएगा, तो जानबूझ के सप्लाई कम कर देते हैं. इसी तरह से बेटा चेंजेस इन सप्लाई क्या है, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज. एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो हमारी सप्लाई क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, इंक्रीज. अदर फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट. और कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्या होएगी कि प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, कम. एरोज देखिए बेटा, मूवमेंट इज अलोंग सेम सप्लाई कर्व. सो दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन. अदर फैक्टर्स यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट. इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है बेटा, ये अगर मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एस एस डैश, और ये क्या हुआ, प्राइस तो मैंने क्या रखा है बेटा, सेम पी. क्वांटिटी सप्लाइड पहले Q1 थी, अब क्या होगी ये Q2. दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. अदर फैक्टर्स जौन से यहाँ पे क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं. और कैसे चेंज हुए हैं, फेवरेबली चेंज हुए हैं. प्राइस क्या रहा है, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. अगर प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर्स चेंज हो जाएं और अनफेवरेबली चेंज हो जाएं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, तो क्वांटिटी सप्लाइड बेटा क्या हो जाएगी, सेम प्राइस के ऊपर ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. What is elasticity of supply? This is proportionate change in quantity supplied due to proportionate change in price. Proportionate change in quantity supplied due to proportionate change in price. That is Q2 minus Q1 upon Q1 divided by P2 minus P1 upon P1. This is original quantity supplied. Q2 is new quantity supplied. P1 is original price, P2 is new price. और यहाँ पे देखो बेटा कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. डिमांड में तो था, यहाँ पे नहीं है. और अगर इसको आर्क इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करना है तो Q1 प्लस Q2 कर दो और P1 प्लस P2 कर दो. आर्क इलास्टिसिटी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिकली हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे. हम हमेशा नॉर्मल फॉर्मूले से ही आंसर निकालेंगे. आपकी बुक्स में सारे आंसर्स नॉर्मल फॉर्मूला से निकले हुए हैं बेटा. बेटा अगर प्राइस सेम रहे
और सिंपल क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, तो ऐसी सप्लाई को क्या कहते हो, परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उस केस में क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। और बेटा अगर प्राइस क्या रहे, इंक्रीज होता रहे 2, 4, 6, मगर क्वांटिटी सप्लाइड क्या रहे, कांस्टेंट, इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, जीरो, और इस डिग्री को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर, 45 डिग्री का एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बोथ एक्सिस, तो हम कहते हैं इट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व का ज़्यादा झुकाव जौन सा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम ये इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक सप्लाई। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और अगर सप्लाई कर्व का ज़्यादा रुझान जौन सा है वो वाई एक्सिस के प्रति है, तो हम कहेंगे इलास्टिक सप्लाई इज लेस देन 1, हाईली इन इलास्टिक सप्लाई। आर्क मैंने आपको बता ही दिया। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, उनकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है, क्योंकि उनको मैं चाह के भी नहीं बढ़ा सकता, मदर नेचर से आ रहे हैं। ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई क्या होती है बेटा, बढ़ाई घटाई जा सकती है। टाइम अगर ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ाई घटाई जा सकती है, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इन इलास्टिक होती है। प्रोडक्शन टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है, सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। नॉन कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न टेक्निक है, सप्लाई को बढ़ा पाएंगे। वेल दिस इज माय डिस्कशन अबाउट सप्लाई। next topic of discussion is production analysis. Next topic of discussion is production analysis. When we talk about production analysis, we say we have to discuss law of production. Law of production which is applicable in short run and which is applicable in long run. We also say when we have to discuss production analysis, we will require factor of production. Land, labor, entrepreneur, capitalist are factor of production. Factor of production can be variable factor of production that can be changed, or it can be fixed factor of production which cannot be changed. In short run there are some variable and some fixed factor of production. In long run all factor of production are variable factor of production. You cannot produce without engaging factor of production, and factor of production will charge some payment that is called factor price. Against land you pay rent, labor charge wages, entrepreneur will go for profits, capitalist will charge interest. So how production changes? Production analysis is relation between inputs and outputs. It is a relationship between inputs and outputs. In short run, the law which is applicable is called law of variable proportion. In long run, the law which is available is called returns to scale. तो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है और लॉन्ग रन में क्या लगता है बेटा, रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन प्रोडक्शन एनालिसिस। सो शैल वी कंटिन्यू विद दिस? फिर पूछना है आपको पॉइंट बेटा, मैं फिर नहीं तो प्रोडक्शन को आगे ओपन कर रहा हूँ। यस प्लीज, चलिए, सो वी जस्ट ओपन इट अप।
प्रोडक्शन का मतलब या तो फॉर्म को चेंज कर देना, से मैं कॉटन बेल से यान बना देता हूँ, फॉर्म चेंज कर दी। यान से क्लोथ बना देता हूँ, फॉर्म चेंज कर दी। प्लेस चेंज कर देना, कश्मीर से एप्पल उठा के पैन इंडिया में सप्लाई कर दिया, प्लेस चेंज कर दी, दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन। और टाइम यूटिलिटी, यानी कि जो सामान मैंने बनाया विंटर्स में वो समर्स में यूज़ किया, जो समर्स में बनाया वो विंटर्स में यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। यानी कि सामान को मैंने ज़्यादा बना के रख दिया। शुगर केन आपको मालूम है साल में 2 बार ही आता है या 3 बार क्रॉप आती है, मगर शुगर की खपत तो पूरा साल होती है। तो हम शुगर को बना के रख देते हैं और धीरे धीरे जैसे मार्केट में डिमांड आती है उसको सप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन लेके आती है। वैल्यू एडिशन मीन्स नथिंग बट प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। लैंड के अपने गुण हैं, लैंड को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लैंड मदर नेचर की गिफ्ट होती है। लेबर मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करती है। लेबर बिना मोटिवेशन के काम नहीं करती है। लेबर को ज़्यादा पैसा दोगे तब भी वो काम नहीं करेगी, लेबर को कम पैसा दोगे तब भी वो काम नहीं करेगी। लेबर हाईली पेरिशेबल है, अगर इसको कंट्रोल ना करो तो टाइम वेस्ट कर जाती है। सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती है। कैपिटलिस्ट वेल्थ का वो हिस्सा है जो प्रोडक्शन को करने के लिए वेल्थ में से खर्च किया जाता है। कैपिटलिस्ट हमारे पास पैसा देता है ताकि हम उसको क्या दे सकें, हम उसको क्या पे करें, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइन करता है, बिजनेस आइडिया लेकर आता है, बिजनेस का रिस्क बियर करता है, उसको ऑर्गेनाइजर या रिस्क टेकर भी कहा जाता है। नए नए आइडियाज़ को लेकर आना, फाइनेंशियल रिस्क बियर करना, टेक्नोलॉजिकल रिस्क बियर करना, ये एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं। नाउ वी कम टू प्रोडक्शन फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने आपको बोला इट इज़ नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन कितने इनपुट डालकर कितनी आउटपुट आएगी, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट पीरियड में क्या लगेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, और लॉन्ग रन में क्या लगेगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब बेटा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, टीपी, एपी, एमपी। टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई इनपुट से, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एक यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ फिक्स्ड है और कुछ क्या है, वेरिएबल। जैसे फिक्स्ड में मैं मान लेता हूँ लैंड इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है, एंटरप्रेन्योर फिक्स्ड है, शॉर्ट टर्म में ये चेंज नहीं होंगे। और वेरिएबल क्या है, सिर्फ लेबर। तो यहाँ पे मैं ना क्या कर रहा हूँ, डोसेज बढ़ा रहा हूँ। ये फिक्स तो हमेशा 1 1 1 रहेगा, मगर लेबर क्या हो सकती है, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं ये प्रपोर्शंस चेंज हो रहे हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। दीज प्रपोर्शंस आर चेंजिंग। इन प्रपोर्शंस को चेंज करके टीपी पे, एपी पे और एमपी पे क्या असर आएगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और असर क्या आएगा बेटा, व्हाट विल बी द असर, लेट अस सी। मैं डायग्राम में समझाता हूं आपको, टेबल भी बना सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। शुरू में टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इट विल बिकम maximum and constant and then TP will fall. This is how my TP moves. कैसे मूव कर रही है, जैसे जैसे मैं प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ और फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फिक्स्ड ही रह रहे। और अगर मैं कहूँ कि मेरी एपी और एमपी कैसे जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायग्राम को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। इसको क्या कहा, स्टेज 1, इसको क्या कहा, स्टेज 2, इसको हमने क्या कहा, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड हैज जस्ट स्टार्टेड टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 में टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बिकम्स कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। स्टेज 3 में टीपी इज फॉलिंग। तो जब स्टेज 1 है तो एमपी इज इंक्रीजिंग एंड हैज स्टार्टेड टू फॉल। स्टेज 2 के एंड पे एमपी इज 0, स्टेज 3 में एमपी इज नेगेटिव।
what is happening to average production? AP is increasing and becomes maximum when TP was increasing at increasing rate. When it starts to increase at increasing rate, AP starts to fall. Averages are never negative, so they continue to fall, but they will never become zero. So these are my 3 stages of production. I have to now identify which is my stage of operations. स्टेज 1 में ऑपरेट करूंगा, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में. स्टेज 1 में क्या है बेटा, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए टीपी अभी बढ़ी है मगर पूरी तरह से नहीं बढ़ी है, इसलिए मेरी ये स्टेज ऑफ ऑपरेशन नहीं हो सकती. अभी मेरे पास संभावना है और लेबर को रखकर और टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने की, इसलिए मैं स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करूँगा. स्टेज 3 में तो बेटा मेरी टीपी फॉल कर रही है, एपी फॉल कर रही है, एमपी फॉल कर रही है, इसलिए स्टेज 3 इज ऑल्सो नॉट स्टेज ऑफ ऑपरेशन. ओनली स्टेज ऑफ ऑपरेशन इज ऑपरेशनल. स्टेज क्या है? Operational stage है stage 2. There is a equilibrium between fixed and variable factor of production. Here TP is increasing, becoming constant and maximum. I am getting maximum TP, and when there is maximum TP, MP is 0. Marginal product is 0. So I will operate somewhere between stage 2. So this is called law of variable proportions. किसको वेरी कर रहा हूँ? प्रपोर्शंस को. कौन से प्रपोर्शंस को? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेशो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा क्या रह रहे हैं? सेम. चेंज क्या हो रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उनकी डोसेज को चेंज करके टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन पे क्या असर आया है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. ये तो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है बेटा. Then what is applicable in long run? लॉन्ग रन में क्या एप्लीकेबल है? तो बेटा लॉन्ग रन में जो एप्लीकेबल है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स बोले तो आउटपुट, स्केल बोले तो इनपुट. कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल. लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? वेरिएबल हैं. सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं बेटा. ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. और ये रिटर्न्स टू स्केल 3 तरीके का है. वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकेंड इज constant returns to scale, and third is increasing returns to scale. Diminishing, constant and increasing returns to scale. So this is my returns to scale. अब diminishing returns to scale का मतलब क्या है? Diminishing returns to scale का मतलब होता है कि जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहे हैं 1, 2, 3 करके, मगर जो मेरी टोटल प्रोडक्शन है वो कम होकर के बढ़ रही है 10, 18, 24. जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है तो इसका मतलब जो एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है 10, 8, 6. मगर रेट ऑफ फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्शन इज मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन एवरेज प्रोडक्शन. यहाँ पे अगर आप टीपी कर्व देखेंगे तो टीपी कर्व इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. यहाँ पे एपी और एमपी कर्व देखेंगे तो बोथ आर फॉलिंग. एपी इज फॉलिंग, एमपी इज फॉलिंग. रेट ऑफ फॉल इन एमपी इज मोर. दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल. मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है कम हो के, इसका मतलब मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट. सो कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. और कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रेट का मतलब होता है यहाँ पे आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो बड़े 1, 2, 3 और टीपी भी बड़ी कांस्टेंट रेट पे 10, 20, 30. इसका मतलब एपी क्या रही? कांस्टेंट 10, 10, 10. और एमपी भी क्या रही बेटा? कांस्टेंट 10, 10, 10. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. इस केस में टीपी कर्व इज 45 डिग्री एंगल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस. And what is happening to your AP and MP? Both are superimposing each other. This is called constant returns to scale. और तीसरा क्या होता है बेटा मेरा? increasing returns to scale. increasing returns to scale का मतलब मेरी इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, मगर अब मेरी टोटल प्रोडक्शन बढ़ के बढ़ रही है 10,
22, 36, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रही है 10, 11, 12 और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही है 10, 12, 36 माइनस 22, 14. So here my TP is increasing at increasing rate, and what is happening to AP and MP? Both are increasing, but MP is increasing at higher rate. This is called increasing returns to scale. When I find my returns to scale are increasing, my cost increases at decreasing rate. Well, this is little discussion about production analysis. Yes, please. Anything that you have to ask from production? Shall I start with cost now? Shall I start with cost analysis? हाँ जी बेटा. Decreasing returns वाला diagram दिखा दो एक बार. हाँ जी बेटा ज़रूर. ये देख बेटा. Okay sir. ठीक है बेटा. चलिए अब हम आते हैं किसके ऊपर? कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर. हम आते हैं किसके ऊपर बेटा? कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. कॉस्ट एनालिसिस मुझे क्या कहती है? देखो, या तो कॉस्ट क्या होएगी अकॉर्डिंग टू नेचर, या तो फिक्स्ड है या वेरिएबल है या फिर क्या है सेमी वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? विच ऑलवेज रिमेन्स सेम विच चेंज इन प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विच वेरीज विद द चेंज इन प्रोडक्शन. सेमी वेरिएबल कुछ चेंज कुछ फिक्स, कुछ चेंज कुछ फिक्स. दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. या तो कॉस्ट को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट क्या हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. इनको भी प्लस करोगे तब भी टोटल कॉस्ट. फिक्स प्लस वेरिएबल सेमी वेरिएबल करो तब भी टोटल कॉस्ट. या फिर बेटा मैं कहता हूँ कि मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है और उसके अंदर क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट होती है, जिसको फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं, जो आपके P&L में डेबिट होगी ना, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो आउटसाइड रिसोर्सेज को हायर करने के लिए पे करी जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जो सेल्फ ओन रिसोर्सेज के लिए इनकर हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट कभी मेरे P&L में डेबिट नहीं होती. इम्प्लिसिट कॉस्ट 3 तरीके की है. नोशनल सैलरी, यानी एंटरप्रेन्योर खुद ही मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को. या नोशनल इंटरेस्ट, यानी कि एंटरप्रेन्योर की खुद की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, बाहर कहीं ब्याज देने की जरूरत नहीं है. या फिर नोशनल रेंट, एंटरप्रेन्योर ने अपनी ही बिल्डिंग लगा रखी है बिजनेस में और बाहर रेंट देने की जरूरत नहीं है. नोशनल, इम्प्लिसिट, नॉमिनल, सिनोनिमस एक ही शब्द है. तो जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट कर दिया जाए तो क्या आ जाती है? इकोनॉमिक कॉस्ट. अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं, तो सेल्स में से क्या माइनस करना? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सेल्स में से क्या माइनस करना? इकोनॉमिक कॉस्ट. आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है बेटा, तो दैट इज अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. आपसे कोई पूछे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, तो आप कहेंगे सिर्फ 3 प्रकार की होती है: नोशनल सैलरी, नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल रेंट. कॉस्ट बेटा रेलेवेंट भी हो सकती है जो मेरे डिसीजन को प्रभावित करे. कॉस्ट इरेलीवेंट भी हो सकती है जिसका मेरे डिसीजन से कुछ लेना देना ना हो. कॉस्ट बेटा नॉर्मल भी हो सकती है और कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल एबनॉर्मल भी हो सकती है. जितनी भी नॉर्मल कॉस्ट है वो मैं कंज्यूमर से पास ऑन करके उसको चार्ज कर लेता हूँ बाय वे ऑफ सेलिंग प्राइस. एबनॉर्मल कॉस्ट मेरी गलती, प्रोड्यूसर की गलती की वजह से इनकर होती है. ये कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करनी चाहिए. ये प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स में से क्या करनी चाहिए? माइनस करनी चाहिए. कई कॉस्ट मेरे को डिसीजन मेकिंग में भी क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं. डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे सबसे हेल्पफुल क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
बेटा अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मुझे ए जना रॉ मटेरियल 10 रुपये पर यूनिट बेचता है, बी जना 11 रुपये, सी जना 12 रुपये. तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? बी 11 रुपये. अगर किसी वजह से ए मुझे सामान ना सप्लाई कर सके तो मैं इमीडिएटली ऑर्डर किसको प्लेस कर दूंगा? बी को. टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, प्रोडक्शन को हॉल्ट नहीं करूंगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव. So it helps me taking decisions during the times of contingencies without waste of time. एक बेटा होती है आपकी क्या? ब्रेक इवन कॉस्ट. इसको आप नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं. ब्रेक इवन मतलब जितना सामान बेचकर जितने मेरे खर्चे हुए हैं वो रिकवर हो जाए. लास्ट रुपी स्पेंट ऑन फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड. Total revenue becomes equal to total cost, profit becomes equal to zero. That point is called break even point. If I have a choice, I will choose a business with a smaller break even point because such businesses are more competent to handle competition and more competent to handle recessionary stages. सो मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन हासिल कर सकूँ और उसके बाद जो भी सामान बेचूंगा उसमें मेरे क्या छुपे हुए मिलेंगे? प्रॉफिट्स. क्योंकि उसके आगे जो सामान बेचूंगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करनी है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है. जो बाकी बचेगा मार्जिन वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट्स. सो ब्रेक इवन कॉस्ट, अगर मुझे बिजनेस को चुनना है तो कौन सा बिजनेस चुनूँ जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कम है. इसी तरह से बेटा एक होती है संक कॉस्ट, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी हुई है, जिसका अब नए डिसीजन में कोई प्रभाव नहीं है, ये इररेलेवेंट है. तो संक कॉस्ट के ऊपर हमें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर के ऊपर देखना चाहिए. फ्यूचर में क्या होने वाला है वो मेरे डिसीजन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है. देयर आर अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट. जैसे कि मैंने आपसे क्लासिफिकेशन करी क्या? फिक्स कॉस्ट. द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स फॉर 0 to 100% लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम. यूनिट्स चाहे बढ़ते रहे, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम. वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट विच चेंजेस विद प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है. सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों के गुण है, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, इसलिए इसको स्टेपिंग स्टोन कॉस्ट भी कहा जाता है. देन यू हैव एवरेज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू total cost divided by number of units is called average cost. What is my total cost? It is total fixed cost plus total variable cost and total semi variable cost if given. So total cost को number of units से divide कर दोगे तो क्या आ जाएगी? average cost. और shape of average cost curve क्या होता है? It is AC is always U in shape. As long as we are enjoying economies of scale, as the scale of production is increasing, the total fixed cost is getting split over the larger number of units produced. Once the optimum level of production is achieved, जब 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी, 100 यूनिट्स बना लिया और उसके बाद भी प्रोडक्शन चालू रखोगे तो ओवर टाइम काम करोगे, डबल शिफ्ट काम करोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, कॉस्ट विल इंक्रीज. दैट विल अट्रैक्ट दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फिनोमिनन्स एवरेज कॉस्ट कर्व इज U in shape. Then you have marginal cost of nth unit. That is total cost of nth unit minus total cost of n minus 1th unit is called marginal cost. Marginal cost curve is also U in shape. And if we have to look into relationship between AC and MC का relationship क्या है? तो हम कहेंगे this is AC, this is U in shape, and this is MC, this is also U in shape. While going up, MC cuts AC at its lowest point. Initially MC is less than AC. Once MC starts to rise, while rising it cuts AC at its highest point, and then MC starts to rise at higher rate to that of rise in AC. So well, these are different relationships, important relationships in you can say cost analysis. There could be another relationship. I have already told you total fixed cost plus total variable cost, and when you divide it by n, then the both sides becomes average cost is equal to average variable cost of plus average fixed cost. और एवरेज फिक्स कॉस्ट बेटा इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एवरेजेस आर नेवर जीरो, बट एज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो U in shape. Average variable cost is also U in shape. When you add average variable cost with average fixed cost, what you get is average cost. Well, this is our little discussion about cost analysis. This is our little discussion about cost analysis.
and with this the discussion relating to producer is more or less handled. Now we will be discussing about markets. Now we will be discussing about what? We will be discussing about markets. Yes please, anything that you have to ask, कुछ भी आपको पूछना बेटा. सर वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी बेटा. अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो आपकी किताबों के प्रॉफिट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ पे निकलते हैं बेटा? पी एंड एल अकाउंट में निकलते हैं ना. और पी एंड एल अकाउंट में से क्या करते हैं हम लोग? सेल्स में से क्या माइनस कर चुके होते हैं? सारी की सारी कॉस्ट जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में डेबिट हुई होती है, उसको आप क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, विच इज़ डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट प्लस विच इज़ डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट. ऐसा करने से अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलते हैं. अगर इसमें से माइनस टैक्स भी कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ट्रेडिंग में क्या आपका डेबिट होता है? परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे. और पी एंड एल में क्या डेबिट होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस. जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किताबों में डेबिट कर रखा है ट्रेडिंग और पी एंड एल में, दोनों को जोड़ो, दैट इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. उसको सेल्स में से माइनस करो तो अकाउंटिंग प्रॉफिट. ठीक है बेटा, जी सर. आगे चलें. यस सर. सो बेटा मार्केट्स. मार्केट्स एक ऐसी जगह जहां पर दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में क्या करते हैं बेटा? इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं. एक सामान बेचता है, दूसरा सामान खरीदता है, भाव तय होता है, सामान का एक्सचेंज होता है. सो मार्केट्स या तो परफेक्ट हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं? इम्परफेक्ट हो सकती हैं. इम्परफेक्ट मार्केट बोलें तो मोनोपोली, इम्परफेक्ट मार्केट बोलें तो मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट मार्केट बोलें तो ड्यूपोली, इम्परफेक्ट मार्केट बोलें तो ओलिगोपोली. सो ये हमारी अलग अलग प्रकार की मार्केट्स. देखिए, जहाँ तक तो बात है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एक ही जैसा होमोजीनियस सामान बेच रहे हैं. सेलर इज़ अ प्राइस टेकर. वो कोई भी प्राइस अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकता क्योंकि बेचने वाले सेम सामान कई सारे लोग हैं. उसे कोई एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है. शॉर्ट रन में तो संभावना है कि उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस हो जाए, मगर परफेक्ट कंपटीटर को लॉन्ग रन में केवल और केवल क्या होने वाले हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स. परफेक्ट कंपटीटर हमेशा लॉन्ग रन में कितना सामान बनाएगा? ही विल प्रोड्यूस ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. यानी अगर उसकी फैक्ट्री 100 यूनिट्स बनाने के लिए सेटअप करी गई है तो वो लॉन्ग रन में हमेशा ही कितने बनाएगा? 100 यूनिट्स. ना 110, यानी ना ओवर प्रोडक्शन करेगा, ना 90, ना अंडर प्रोडक्शन करेगा. ये तो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, या आप कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, या आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जनरली हम क्या कहते हैं? प्राइस आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन. जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए, यानी एक यूनिट को, एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का खर्चा एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से आने वाली आमदन के बराबर हो जाए, वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है. उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से ही कॉस्ट और प्राइस क्या होता है? डिटरमाइन होता है. वहीं से एक्सटेंड करके हमें कॉस्ट भी पता चलती है, प्राइस भी पता चलता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी पता चलती है. अब अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मोनोपोली की. मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब विश. जहाँ पर एक ही बेचने वाला है, कई सारे खरीदार हैं, ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज मोनोपोली मार्केट. अब मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन मोनोपोली मार्केट कि द सेलर इज अ प्राइस मेकर. जिस भाव चाहे
उस भाव सामान को बेचने की क्षमता रखता है, यूनिक गुड्स बेचता है, उसके जैसा सामान कोई और जना नहीं बेच रहा है। मोनोपोली मार्केट में बल्क सेल्स करने के लिए सेलर डिस्काउंट्स देता है और लोगों को ये बताने के लिए कि मैं ये सामान बेचता हूँ एडवर्टाइजमेंट भी खर्च करता है। शॉर्ट रन में मोनोपोली को भी लॉसेस हो सकते हैं। जब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, लोगों को आदी बनाना है इसलिए सामान सस्ता बेच सकता है, या नए कंपटीटर को आने से रोकना है इसलिए जानकर भाव को कम कर सकता है। तो शॉर्ट रन में तो मोनोपोली को लॉसेस हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तीनों हो सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाले हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और मोनोपोली ऑपरेटर हमेशा अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से कम यूनिट्स को बनाएगा। अगर उसके बनाने की कैपेसिटी 100 यूनिट्स है तो वह कभी 100 यूनिट्स नहीं बनाएगा, जानकर उससे कम यूनिट्स बनाएगा। आर्बिट्रेरी स्केर्सिटी क्रिएट करेगा मार्केट में, ताकि लोगों को ऐसा लगे सामान की कमी है मार्केट में, इसीलिए वो मन चाहा भाव उनसे क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। दिस इज द फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। अगर हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स की, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वेरी लार्ज नहीं है, वेरी लार्ज हो जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, अफ्यू भी नहीं है, अफ्यू होगा तो ऑलिगोपोली हो जाएगा, सिंगल भी नहीं है, सिंगल हो जाएगा तो मोनोपोली हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो गुड्स बेचे जाते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी हर कोई स्कूटर बेच रहा है, मगर किसी का 2 स्ट्रोक है, किसी का 4 स्ट्रोक है, किसी का गियरलेस है, किसी का विद गियर्स है, किसी का मेटालिक पेंट है, किसी का मेटालिक पेंट नहीं है। यानी यूटिलिटी तो प्रोडक्ट की सेम है, मगर उनमें कुछ फीचर्स का क्या है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं। डिफरेंशिएशन के कारण से ही थोड़ा सा हम प्राइस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। सो पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है, डिफरेंशिएटेड गुड्स बेचे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे अपना सामान बताना है और इसमें क्या ज़्यादा अच्छा है दूसरों के सामान से ये भी बताना है, इसलिए डिस्काउंट कॉस्ट भी मुझे ज़्यादा इनकर करनी पड़ती है। पार्शियल कंट्रोल से मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में होने लगे थे, मगर हाई एडवर्टाइजमेंट और हाई डिस्काउंट कॉस्ट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसलिए मोनोपोलिस्टिक ऑपरेटर को भी लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये भी अपनी कैपेसिटी से कुछ सामान क्या बनाता है, कम, ताकि पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। ये भी आर्बिट्रेरी कैपेसिटी रखता है, इसके पास भी आर्बिट्रेरी शॉर्टेज रखता है, ये भी रिजर्व कैपेसिटी रखता है। ड्यूपोली बोले तो जब सिर्फ 2 ही जने सामान बेच रहे हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी, मेजर मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, बाकी ऑपरेटर्स के पास नेग्लिजिबल मार्केट शेयर है, दैट इज कॉल्ड ड्यूपोली। और जो आखिरी इंपॉर्टेंट हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है, जिसका नाम क्या है, ओलिगोपोली। जिसका नाम क्या है बेटा, ओलिगोपोली। नाउ व्हाट हैपेंस इन ओलिगोपोली? ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा, ओलिगोपोली में अ फ्यू सेलर्स, जैसे गाड़ियां बनाने वाले इंडिया में 8-9 ही मोटर व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, अ फ्यू सेलर्स, इसको क्या कहेंगे, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हम ये कहते हैं जब तक लोग एक साथ मिलकर कार्टेल में चलते हैं उनको होता है फायदा, और जब कोई झुंड से बाहर निकलता है, कार्टेल से बाहर आने की कोशिश करता है, तो उसे क्या हो जाता है बेटा, नुकसान। एक जने को लगता है मेरा सामान तो सबसे अच्छा है, मैं जो रेट चाहूँगा उस रेट पे बेचूंगा, वो अपना रेट बढ़ाता है बिना दूसरों की सहमति के, तो बाकी लोग रेट नहीं बढ़ाते, और ये बंदा आइसोलेट हो जाता है। तो ये रेट अगर बढ़ाता थोड़ा सा भी है, इसकी जो सेल है उसका लॉस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी हाईली इलास्टिक डिमांड हो जाती है। थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी सोल्ड बाय हिम डिक्रीजेस बिकॉज अदर्स हैव नॉट रिड्यूस देयर प्राइसेस। और अगर ये जना कहता है कि नहीं मैं तो ना कम प्राइस करके सारा ही सामान खुद ही बेच दूंगा, किसी को बेचने ही नहीं दूंगा, उसमें भी इसको नुकसान होता है अगर ये बिना सहमति के चलता है। जैसे ये प्राइस को घटाता है, बाकी सब लोग भी प्राइस को घटा देते हैं। तो इसने जो उम्मीद करी होती है कि प्राइस को घटाने से मेरी इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी, वैसा बढ़ता नहीं है, क्योंकि और लोगों ने भी प्राइस को घटाया हुआ है। तो ओलिगोपोली में हम अगर कार्टेल में चलते हैं तो बेनिफिट है, और कार्टेल के अगेंस्ट चलते हैं, बिना सहमति के चलते हैं, बिना आम राय के चलते हैं, तो क्या होता है, नुकसान। दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। यहाँ पे जो डिमांड कर्व बनता है वो किंक्ड बनता है, उसमें स्लोप क्या होती है, चेंज। ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो। That is called oligopoly market. Well, this is discussion about markets. Then there are some concept in this
डिस्कशन। एक है बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझिए क्या, कि सेम सामान है, अलग अलग ग्राहक को मैं अलग अलग भाव पे बेच रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो रहा है बेटा, व्हाट इज हैपनिंग, कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक सब्जी वाला है हमारी गली में आया, उसने लोगों को देखा, जैसा उसको लगा वैसा मन रेट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हर इंडिविजुअल से अलग प्राइस चार्ज करना, दैट इज फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या है कि अगर कोई मुझसे बल्क में खरीदेगा तो उसके लिए रेट कम, अगर कोई रिटेल में खरीदेगा उसके लिए रेट ज़्यादा। हमने ग्रुप्स बना दिए, वी हैव मेड द you can say segmentation has been done on the quantity of goods sold। जो बल्क में खरीद रहा है उसके लिए रेट कम, जो कम खरीद रहा है उसके लिए रेट ज़्यादा। और थर्ड में मैंने क्या किया, कंज्यूमर ग्रुप्स, जैसे जो मंडे से लेके थर्सडे तक पिक्चर देखेगा उसके लिए रेट कम, फ्राइडे सैटरडे संडे देखेगा उसके लिए रेट ज़्यादा। जैसे कोई आईपीएल का मैच है, स्टूडेंट टिकट का रेट कम, पेविलियन का रेट ज़्यादा, कंज्यूमर ग्रुपिज्म कर दी, है तो सेम पिक्चर, है तो सेम मैच, मगर देखने वालों के लिए रेट क्या है, अलहदा, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और बेटा एक और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जो कि हमारे को डिस्कस कर लेना चाहिए यहाँ पर, बिफोर आई से कंक्लूजन्स टू द डिस्कशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज बिजनेस साइकिल्स। व्हाट आई विश टू डिस्कस इज बिजनेस साइकिल्स। ये बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल्स? बिजनेस साइकिल इज दैट इकोनॉमी कैन गो इनटू पीक, this is expansion, and then economy reaches the peak and then economy starts to fall, this is called contraction, and then it reaches down, this is called trough, this first peak, and then again it starts to rise and so on, it keeps on moving. So 4 phases of economic business cycle are expansion, peak, contraction and trough, and then followed by expansion, peak, contraction and trough. This is how my business cycle keeps on moving. Business cycle is never static. Sometimes there will be boom, sometimes there will be fall, sometimes there is bullish phase, sometimes there is bearish phase. As a businessman I should be knowing at present what is the stage of cycle so as to take a decision whether I should launch a new product now or not, whether I should expand my capacity now or not. If we are running through expansion, everything is successful. If we are running through contraction, I should hold my decision and should wait for better times to come. How do I know about in which stage of economy I am moving? I have indicators, some are leading indicators which pre-tell me what is going to happen in future. For example, I take the data of raw material purchases, I take the data how much labor hours are getting spent in factory. If they are increasing from previous year, I can pre-tell that in future the production is going to increase. Some are coincidental indicators. If my warehouses are full, if I am engaging more transport trucks, that means I have produced more. And some are lagging indicators. Say at the end of the year when I prepare my profit and loss account, I find my profits to be more, my asset base has increased, that means in last year I have worked well, that is called lagging indicators. So leading, lagging, coincidental indicators tell me about business cycles, stages of business cycle, and stages of business cycle help businessmen to take accurate business decisions. Well, this is my broad discussion about microeconomics. Now, if you have to ask me anything, you can ask, please. Yes, please. Any of you. You are welcome to ask your queries. Have you broadly reviewed the whole microeconomics? Were you able to understand what are the major areas of concern? Are you left with any queries now? Hopefully there are no queries. So
So let us conclude the class over here. Okay, have a good day. Take your papers with full earnest and with full conceptual knowledge. Anything that you have to ask, you can get back to me on my WhatsApp number as well. Okay, bye. Take care, all of you. Thank you so much. Thank Thank you, you, sir. sir. Most welcome, beta.